ایک ایسی کہانی جہاں محبت جنون بن جائے، جہاں ایک نظر دل کی دنیا بدل دے، جہاں جذبے الفاظ سے نکل کر روح میں اتر جائے۔ پیش خدمت ہے انم طارق کے قلم سے لکھی گئی ایک جذباتی داستان، میرا جنون۔ محبت، ضد، انا اور بے خودی کا سفر۔ قسط نمبر 3۔ موسم سرما کی سرد ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ وہ ایک گھر کی چھت پر چھپ کر بیٹھا، دوربین سے ایک فلیٹ کو فوکس کیے بیٹھا تھا۔ فلیٹس کی لائٹس آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھی۔ وہ پائپ کی مدد سے نیچے اتر کر اپنی پنڈلی کو تھپ تھپا کر چاقو کی موجودگی کی یقین دہانی کی۔ وہ اس وقت کالا چست لباس پہنے ہوئے تھا، چہرے کو سیاہ ماسک سے ڈھانپے، ہاتھ میں گن تھامے، مضبوط قدم اٹھاتا ان فلیٹوں کے پچھلی جانب گیا اور وہاں پر لگے پائپ کے ذریعے مطلوبہ فلیٹ کے ٹیرس تک پہنچا۔ ٹیرس کا دروازہ ہلکا کھلا تھا۔ اندر موجود شخص یا تو دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا یا پھر اسے یہ خوش فہمی تھی کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ کیپٹن زوایار چونکے انداز میں داخل ہوا، گن ہاتھ میں نشانہ لینے والے انداز میں تھامی ہوئی تھی۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک لڑکی کے چلانے کی آوازیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ آوازوں کا مرکز فلیٹ میں بنا واحد کمرہ تھا۔ زوایار کی پیشانی کی رگیں تک گئی تھی۔ اس نے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ چھوڑو مجھے، جج جانے دو پلیز، وہ لڑکی دروازہ بجاتے ہوئے چلائی تھی، ساتھ ہی کسی کی مگر مگر وہ کہہ کے بھی گونجنے لگے تھے۔ زوایار نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے ایک پن لاک میں ڈال کر اسے محفوظ انداز میں لیفٹ رائٹ گھمایا تو کلک کی آواز سے لاک کھل گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک ناگوار سی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیل گئی تھی۔ اس وقت ایک شخص نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ ابے کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دروازہ کھلنے پر وہ شخص زوایار کی طرف مڑا۔ وہ پوری طرح سے نشے میں دھت تھا، لڑکھڑاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زوایار نے بنا کچھ کہے اسے اپنی گرفت میں کیا اور اس کی گردن کی ایک مخصوص نس دبائی، جس سے وہ لہرا کر گرا۔ زوایار نے ایک نگاہ کمرے پر دوڑائی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ شو پیس ٹوٹے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ پر شراب کی خالی بوتلیں بکھری پڑی تھی۔ کمرے کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ اس لڑکی نے جلدی سے فرش پر گرا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے اور ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی خوفزدہ نظروں سے زوایار کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی عمر بمشکل 16-17 سال ہوئی۔ زوایار کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ ریلیکس لٹل گرل، اب آپ بالکل محفوظ ہو۔ اس نے اس لڑکی کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ لڑکی چیخنے لگی تو اس نے وہیں پر رک کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دیکھو بہن، میں اس سے لے کر واپس چلا جاؤں گا، آپ ڈرو مت، ٹرسٹ می بچے۔ آپ کی بار اب کی بار وہ نرمی سے بولا تو وہ لڑکی کچھ نہیں بولی۔ زوایار نے اس آدمی کو کندھے پہ ڈالا اور باہر دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نیچے کار میں موجود ایجنٹ بلال یقیناً فلیٹس میں لگے سارے کیمرے ہیک کر چکا تھا۔ سنو، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں بحفاظت تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا سکتا ہوں، لڑکی سے کہتا وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے صرف 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے باہر نکلنا تھا اور لڑکی کو بھی محفوظ مقام پر پہنچانا تھا۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ علیزے اپنے سامنے کھڑے ان اونچے لمبے
खुरबरू लड़कों को देखकर घबराए हुए लहजे में बोली। घबराहट से उनके सख्त तासुरात देखकर हुई थी। क्या कर रही थी तुम वहां पर? मेजर शाजर सख्त लहजे से पूछने लगा। कहाँ पर? शाजर के हाथ में तेज धार ब्लेड देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह से दो बता दो कि क्या कर रही थी वहां पर, वरना मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारा काम करने में। शाजर उसकी गर्दन पर ब्लेड रखता हुआ बोला। मैं खौफ से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बहने लगे थे। ड्रामेबाजी मत करो। शाजर ने उसकी गर्दन पर दबाव था बढ़ाया तो हल्का सा साकट लग गया था। अलीजे ने आंखें बंद कर ली और खौफ से चीखने लगी। शाजर ने ब्लेड हटाकर उसका मुंह सख्ती से बोझ लिया। सर प्लीज, मैं पूछता हूँ। इससे कैप्टन जवायार को बहुत मासूम लगी थी। वो बिना कुछ कहे एक तरफ खड़ा हो गया। रिलैक्स, आप पहले रोना बंद करें। जवायार संजीदगी से बोला। आप मुझे मुझे मारेंगे तो नहीं? वो खौफजदा सी पूछ रही थी। शादर बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। नहीं, बल्कि के भी नहीं मारेंगे अगर आप सच सच सब कुछ बता देंगी। अब की जवायार के लहजे में हल्की सी नरमी थी। मैं मैं मुझे वाकई ही नहीं पता कि आप लोग किस बारे में पूछ रहे हैं। उसके नरम लहजे से अलीजे भी थोड़ी रिलैक्स हुई। ये ऐसे नहीं बताने वाली। मुझे लगता है असल को बुलाना पड़ेगा। वो इतने तरीके से पूछेगी। शाजर सर्द लहजे में बोला तो अलीजे सहम गई। सर जस्ट 2 मिनट्स। अगर उसने ना बताया तो फिर आप जो मर्जी करेगा। रवा शाहजर से कहता उसकी तरफ मुड़ा। जल्दी से बताओ, पीर वलीद शाह के आस्थाने पर क्या करने गई थी? वाट, तुम तब से पूछ रहे थे? मुझे पहले ही पूछ लेते तो मैं बता देती। फजूल में मुझे इतना डराया और जख्मी भी कर दिया। उसे झटका लगा था। खौफ को एक साइड पर रख कर उसे घूरते हुए बोली और अपना हाथ गर्दन पर रखा जहां से हल्का सा खून रस रहा था। चलो फिर जल्दी से बताओ। शाजर दोबारा से उसके सामने आया तो जवायार पीछे हटकर खड़ा हो गया। मैं मेरे सर में दर्द था। दो तो दम करवाने गई थी। शाहजर को अपने सामने देखकर वो फिर से डर गई थी। तो फिर वहां भेस बदल कर क्यों फिर रही थी? उसका बाजू सख्ती से दबोचे वो गराया था। अलीजे को उसकी उंगलियां बाजू में धंसी महसूस हो रही थी। तकलीफ से आंखों में नमगीन पानी जमा होना शुरू हो गया। मैं मैं नहीं, पानी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगा था। जब शाहजर ने उसके सामने लैपटॉप खोला और एक वीडियो प्ले की। उस वीडियो में एक लड़की हुड से चेहरा छुपाए हाथ में कैमरा थामे एक इंतहाई अजीब सी जगह पर मौजूद थी। एक जगह पर उसने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाया तो अलीजे साकत हुई थी। वो मैं नहीं हूँ। ये वो रोते हुए एक जुमले के जाने कितने टुकड़े करती बात अधूरी छोड़ गई। शादर
रगें तन गई और सवायार की पेशानी पर भी बल नमूदार हुए। वो सबूत सामने होने के बावजूद भी मुस्कुरा रही थी। शटअप, जस्ट शटअप। शादर शादर धाड़ा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी लड़की का खूबसूरत और मासूम चेहरा बिगाड़ दे, जो झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अगर वो लड़की ना होती तो यकीनन अब तक वो उसका हशर बुरा कर चुका होता। उसके धारने पर अलीज़े ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की। एक बार फिर से खौफ से कपकपाने लगी थी। उसकी पलकें लजरने लगी थी। सर, वो ठीक कह रही है। आस्ताने पर ये लड़की नहीं गई थी। कैप्टन अशल कमरे में दाखिल होती बोली। मतलब? शाहजर ने चौंक कर उसे देखा। दवायार भी ना समझी से उसे देखने लगा। मतलब ये कि जो लड़की आस्ताने पर गई थी वो इसकी बहन नूर है। बहन, जवायार उलझकर बोला, जबकि शाहजर एक खामोशी नजर अलीजे पर डालता उसे देखने लगा। बहन, ये दो बहनें अलीजे और नूर दोनों हम शक्ल है। अशल के कहने पे सर जवायार भरा सामना बनाया। उसे लगा अशल मजाक कर रही है। वो इस वक्त एक फ्लैट में मौजूद थे जो कि उस मिशन के लिए उन्हें इस्तेमाल करना था। असल एक बहुत अच्छी हैकर थी। जवायार ने कल जिस आदमी को फ्लैट से उठाया था, उसके फ्लैट से उसका मोबाइल, लैपटॉप और एक यूएसबी मिली थी, जिससे हैक करके उसमें मौजूद डाटा निकालने के लिए वो यहाँ पर आई थी। नूर, अंदर आओ। अशल ने नूर को आवाज दी तो वो अंदर आते भागकर अलीजे के पास आई। हाँ, हेलियो एबिल, जवायार के मुंह से बेअख्तियार निकला था। तुम वहां पर क्यों गई थी? अशल अपने सीने पर बाजू लपेटे खड़ी उससे पूछने लगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं काफी अरसे से इन जाली पीरों के बारे में रिपोर्ट तैयार करना चाहती थी। फिर पीर वलीद शाह मुझ मुझे मशकूक लगा, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने लगी। उन्हें अवाम के सामने एक्सपोज करने के लिए वहाँ की वीडियो बनाई थी, जिसलिए मैं वहाँ पर गई थी। नूर सर झुकाए आस्था से उन्हें बताने लगी। शाहजर ने अशल की तरफ सवालिया नजरों से देखा, गोया पूछ रहा हो कि ये लड़की सच कह रही है या झूठ। अशल ने असबाब में सर हिलाया। शाह ने अलीजे को देखा, जिसे वो बेकसूर होते हुए भी हर्ट कर चुका था। अलीजे सुर्ख होता चेहरा झुकाए अपनी गर्दन पर हाथ रखे बैठी थी। अचानक अलीजे ने सर उठाकर शिकवा कनान नजरों से शाह को देखा। नजर मिलते ही शाह सकत हुआ था। उसके दिल की दुनिया ही हिलकर रह गई थी। जबकि अलीजे खौफजदा होती नजरें झुका गई। शाहजर ने लब भीज लिए। लिसन, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। वो बहुत डेंजरस जगह है। उनको एक्सपोज करने का काम पुलिस कर रही है। उसे करने दो। दोबारा तुम वहां पर नजर नहीं आओ। जवायार नूर को देखता संजीदगी से बोला और उसे ये जाहिर करवाया जैसे वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हों। उन्हें बाहिफाजत उनके घर पहुंचा दो। शाहजर ने जवायार को इशारा किया और खुद अशल की तरफ मुतवजा हुआ, ताकि इस आदमी के मोबाइल से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में जान सके। सर, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मेहनत की है। हो सकता है कि मेरी इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन में से कुछ आपके काम आ सके। नूर की बात पर तीनों उसकी तरफ मुतवजा हुए।
अलीज़े ने नूर के हाथ पर दबाव डालकर उसे कुछ भी कहने से रोका, पर नूर ध्यान दिए बगैर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने लगी, जो कि कुछ नूर बता रही थी, वो सब कुछ वो पहल से ही जानते थे, मगर उन्होंने उसे किसी ने भी खामोश नहीं करवाया था। शायद वो देखने चाहते थे कि नूर इस बारे में क्या कुछ जानती है, पर एक जगह पर वो चौंका। नूर कह रही थी कि इस इमारत के नीचे एक मुगलिया तर्ज का एक बहुत बड़ा तहखाना है, मतलब जिस तरह से पहले जमाने में इमारतों के नीचे खुफिया जेल बनाते जाते थे, इस तरह का। इसमें बहुत सारे सेल बनाए गए हैं और इस तहखाने से बाहर निकलने के वो रास्ते हैं। नूर की आखिरी बात पर वो चौंके थे, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक तहखाने से निकलने का एक ही रास्ता था, जो आस्ताने के पीछे वीरान इलाके में खुलता था। नूर प्लीज चलो यहाँ से, अलीजे ने नूर के हाथ दोनों हाथों से थामकर उस पर गिरफ्त मजबूत की। उसकी ये सरगोशी शाहजर ने बखूबी सुनी थी। दूसरा रास्ता कौन सा है? वो अलीजे की बात को इग्नोर करता संजीदगी से नूर से पूछने लगा। दाहिनी जानिब बने तीसरे सेल की पिछली दीवार में एक दरवाजा है। वहां से एक तावील और तारीक रास्ता निकलता है, जो कि आगे जाकर वो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आगे के ये दो रास्ते कहाँ तक जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। नूर ने कंधे उचकाए। तुम इस सेल के अंदर गई थी? जवायार ने सवाल किया। नहीं, लेकिन मैंने सर्च किया है इस पर कि ये तहखाना मुगल हुक्मरानों ने ही बनाया था। तकरीबन 15 साल पहले एक जलजला आया था, जिसमें इसके ऊपर बनी इमारत गिर गई थी। 10 साल पहले यहाँ पर दोबारा इमारत तामीर की गई थी। लोगों का ख्याल यही था कि वो खाना तबाह हो चुका होगा, मगर ऐसा नहीं था। नूर ने उन्हें तफसील बताई। बहुत शुक्रिया, और ये और एक बात का ख्याल रखना कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। शाहजर सर्द लहजे में बोला। और एक बात और, तुम दोबारा उस जगह पर नहीं जाओगी। कानून अपना काम कर रहा है और उन मुजरमों के एक्सपोज करने देंगे। तुम्हें जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम अपनी जान को खतरे में डालने के बजाय मेरी बात समझोगी। जवायार नूर को देखता और करने लगे वाले अंदाज में बोला। नूर ने उसकी बात पर असबाब में सर हिला दिया, मगर चेहरे पर साफ लिखा था कि वो उसकी बात पर अमल हरगिज नहीं करने वाली। हंसना भी साथ में आता है और मसल कर रोना होता। मंजिल तक सोच कर आए हैं, हौले जो होना होता। एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो। हम अपना नजरिया पास रखते हैं। उसने उन्हें वो सब कुछ ये सोचकर बताया था कि वो उनके साथ, उसके ख्याल में पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि वो उन मुजरमों को जल्दी एक्सपोज कर सके। पर उनके सर्द और रूखे रवैये को देखकर उसे लगता था कि उसने गलती कर दी है। असल ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उनका हाथ थाम अपने साथ बाहर ले जाने लगी, तो दोनों घबरा गई। कहाँ लेकर जा रही हैं आप अलीजे? एक बार फिर से खौफ की वजह से कंपना शुरू हो गई। रिलैक्स, आपके घर छोड़कर आएंगे, संजीदगी से कहती उन्हें बाहर ले गई। उन पर नजर रखो। हम इतनी आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। शाहजर और शाहजर जवायार को संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। यूएसबी और मोबाइल में मौजूद
तमाम डाटा डिकोड कर लिया था। कल शाम को एक शेख पाकिस्तान आ रहा था, जिसे ये आदमी 15 लड़कियां बेचने वाला था, मगर उन लड़कियों को कहाँ रखा गया था, ये वो नहीं जानते थे। यही सब उगलवाने के लिए वो एक बार फिर से सेल में मौजूद था। उसके हाथ में 3 से 4 फुट लंबी जंजीर थी। बोलो, कहाँ पर रखा है उन लड़कियों को? शाह अपने हाथ पर जंजीर को बल देता सर्द लहजे में पूछ रहा था। वो आदमी रस्सी की मदद से हुआ उल्टा लटका हवा में झोल खा रहा था। उसके बदन पर से शर्ट गायब थी। वो शाह के पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। ओ, तो नहीं बताओगे? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाह उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। आंखों में वैसी चमक उभरी थी जो शिकार को देखने के बाद शिकारी की आंखों में उभरती है। उसने एक नजर हाथ पर पकड़ी जंजीर को देखा और एक नजर अपने हाथ में पकड़ी जंजीर को देखा और फिर दीवार के साथ पड़े चूल्हे को। दिलावर, एक पतले में पानी डालकर लाओ। उसने सेल के बाहर खड़े जवान को हुक्म दिया और चूल्हा जलाकर जंजीर का एक सरा आग पर रख दिया। जंजीर का वो हिस्सा देखते हुए कोयले की मानद लाल हुआ गया था, बाकी पूरी जंजीर भी गर्म हो गई थी। शाह उसके परवार किए बगैर उठा और जंजीर से मारना शुरू कर दिया। उस आदमी की दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी।